Hello class 10. Good evening students. Students, from today I am going to start your biology portion of science, that is start from chapter 6, that is the life process. Okay. So from today I am just going to take every day I take a small topic, every day a new topic, and then I explain all the topic in detail. So today I am just give you the introduction of this chapter and also some important topic, then we will continue with the next day. Okay. So class 10, that is chapter 6, life process. Okay, chapter 6 है जिसका नाम है life process. First of all I want to give you the introduction of this chapter. क्या है ये चैप्टर, किसके बारे में है? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि आपके लाइफ में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर उसमें से एक भी प्रोसेस अगर कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, या एक प्रोसेस को कुछ हो जा रहा है तो दूसरा प्रोसेस भी उससे अफेक्टेड होगा. और अगर एक भी प्रोसेस बंद होगा तो आपकी बॉडी अफेक्टेड होगी. तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कंटिन्यू चल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ बनी रहे. So what is the life process? The process that are necessary for an organisms to live. लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट देयर आर 7 लाइफ प्रोसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. ये 7 लाइफ प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में, बिना इसके आपकी लाइफ अलाइव नहीं रहेगी. You are lifeless without these life process, and these life process continue with one to another. मीन्स जीने के लिए आपको ये लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, देन ऑलवेज यू से दैट livings are grow, non livings are doesn't grow, living things take a respiration, non living thing doesn't know, living things excrete, living thing reproduce. So all this you give the points. So this means that for every living thing there is a life processes. So there are 7th life process: movement, respiration, sensitivity, growth, excretion, reproductions and nutritions. These are 7 life process in my point of view, which you have to know about these points. Without these life process no one will survive. If anyone the life process is removed, then your life will not be complete. Suppose that when you're not able to move from one place to another place, then imagine what will be your life. If you not respire, then imagine what will your life. If you not have a sensitivity, if you not have excretion, growth or reproduction or nutrition, then what will happen? You think by yourself. This is lifeless. Means if any one of the topic in any one respiration process, if you remove, then there is a no life process. Okay. So what is life process? You just write from here the process that are necessary for an organisms to live. वो process जो किसी भी living organism को रहने के लिए ज़रूरी है, that is called the life process. इसमें nutrition, respiration, growth, reproduction, excretion, sensitivity, movement सारे आ जाएंगे. तो सबसे पहले अब हम एक एक लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. मूवमेंट, यू नो, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो लेट अस कम फर्स्ट ऑफ ऑल विथ न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना नथिंग इज पॉसिबल. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज द न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड excrete waste was called nutrition. ठीक है. increase waste. So what is nutrition? nutrition क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेती है और उसको यूटिलाइज करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है जिससे कि उन्हें एनर्जी मिल सके. और वो एनर्जी किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए, ताकि उनमें ग्रोथ हो सके, उनके सेल्स रिपेयर हो सके और उनकी बॉडी का मेंटेनेंस हो सके और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ सके. सो ये पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस होता है.
और न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो प्रोसेस से बनता है, जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से बनता है, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज़ द यू आर जस्ट अ न्यूट्रिशन। ये सब क्या है, ये जो प्रोसेस हो, जैसे जैसे एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। मेनली वी जस्ट describe the nutrients as the two types of nutrients, autotrophic nutrients, heterotrophic nutrients। पहले हम न्यूट्रिशन के दो टाइप बताएंगे, एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन काइंड ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफ्स। नॉट ओनली ऑटोट्रॉफ, एनी अदर डेड ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, किसी पे भी जो खाने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड होते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक, उस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। और जो खुद बनाते हैं अपना खाना बाय द रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ से अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे एयर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एयर, वाटर, सनलाइट, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है प्लांट्स, एंड हेटरोट्रॉफिक का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स एंड अदर organisms. Now in next day we will today's only this, because if I just discuss too much then your mind will not grasp it, because you are now just came in class 10th, so you have to just slowly we will discuss the chapter. So tomorrow I will just discuss the next point about the autotrophic nutrition. कल हम लोग autotrophic nutrition को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. So class, thank you, and your homework is just start making the notes of this chapter, and also try to understand, read the chapter 6, that is the life process. Thank you class 10. Thank you.